Hello students. So today under this subject livestock production, we are going to discuss a new topic. A new topic is selection and breeding of animal. Okay. So breeding, we all know that breeding is very important to get better performance, to get good production with your animal. So before breeding, the selection is also very important, because after the selection of animals you can allow your animal for breeding, then you can get better performance. Okay, so as you can see here, selection is the process in which certain individuals are preferred over the other. What does it mean? Suppose if you have a large population of animal, then all animals you can't allow for the breeding purpose. So you need to select superior quality individuals, and then you will allow them for the breeding purpose. Then you can get better performance. Okay, so just opposite the selection, one more term is there. That term is culling. And under culling, the separation of inferior quality individuals, and these inferior quality individual you have to discard them. Okay, so just opposite culling, that another term is judging. So we can say the judging is a part of selection, because same judging में भी क्या करते हैं, superior quality animals को select किया जाता है और उनको आप use करते हैं for different purpose like breeding and other purpose. Okay, so this is the selection. So there's two type of selection, as you can see here. One is natural selection and another one is artificial selection. Okay, natural selection means it is defined as the selection which occurs without the planning of man. Okay, without the planning of man. And just opposite artificial selection, all environment provided by man. Okay, so that is known as the artificial selection. So artificial selection used for proper selection in dairy farms. Okay, तो नेक्स्ट टॉपिक जो हम बात करेंगे अंडर दिस टॉपिक, बेसिस ऑफ सिलेक्शन. एंड वन मोर थिंग इज देयर, मेथड ऑफ सिलेक्शन. सो डोंट गेट कंफ्यूज बिटवीन बेसिस ऑफ सिलेक्शन एंड मेथड ऑफ सिलेक्शन, बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू डिसाइड द बेसिस फॉर सिलेक्शन, एंड आफ्टर डिसाइडिंग द बेसिस देन यू हैव टू चूज द मेथड ऑफ सिलेक्शन. Okay, so first of all we'll discuss the different bases are there. On these different bases we can select our animals. So as you can see here, first one is individual or mass selection. And individual selection, as title is clearing here, individual, it means the on the performance of individual की performance को देख के, as you can see here, individual are selected on the basis of their mean phenotypic value. किसी भी animal का phenotypic performance को देखकर we can select them and we can use for breeding purpose. Okay, and this is also known as mass selection. Why it's called mass selection? Because selective individuals are put together in mass for mating. बिकॉज अगर आपके पास बहुत बड़ी पॉपुलेशन है तो उसमें से जो इंडिविजुअल जिनकी परफॉर्मेंस अच्छी है उनको आप सेलेक्ट कर लेंगे और उनकी आपस में मीटिंग कराएंगे. तो दैट इज वाई दिस इज ऑल्सो नोन एज मास सेलेक्शन. ओके, नेक्स्ट वन इज पेडिग्री सेलेक्शन. अंडर पेडिग्री वी नीड टू चेक द हिस्ट्री शीट ऑफ एंसेस्टर. किसी अगर इंडिविजुअल को आपको सेलेक्ट करना है और किसी पर्टिकुलर ट्रेड के लिए, लाइक वी वांट टू सेलेक्ट अ काउ, यंग काउ फॉर मिल्क प्रोडक्शन, एंड दैट टाइम दैट काउ इज नॉट गिविंग यू मिल्क, देन हाउ वी कैन सेलेक्ट इट? दिस टाइम वी कैन सेलेक्ट दैट काउ फॉर मिल्क प्रोडक्शन ऑन द बेसिस ऑफ ancestors performance. So the thing which is very important under pedigree selection, we need to maintain accurate record, because these accurate record provide the proper information for different type of trait. Okay, so one more question they can ask regarding this basis. If you want to select a young female cow for milk production, so which basis is best? So that time you should say पेडिग्री सिलेक्शन. अगर कोई आपको यंग काउ को सेलेक्ट करना है मिल्क प्रोडक्शन के लिए तो पेडिग्री मेथड इज बेस्ट मेथड. एंड वन मोर थिंग, दिस मेथड इज यूजफुल फॉर दोज कैरेक्टर हैविंग लो टू एवरेज हेरिटेबल कैरेक्टर. बिकॉज जो हाई हेरिटेबल करेक्टर है वो तो इजीली आपको दिख जाएंगे, अपीयर होंगे, बट जो लो हेरिटेबल करेक्टर है एंड एवरेज हेरिटेबल करेक्टर यू कैन चेक ऑन द बेसिस ऑफ एक्यूरेट रिकॉर्ड. उन रिकॉर्ड्स के थ्रू आप वो लो हेरिटेबल करेक्टर और एवरेज हेरिटेबल करेक्टर को चेक कर सकते हैं. सो दिस इज यूजफुल in such type of character. Next is family selection. On the basis of family performance we can select or reject our animal. And one more thing, under this basis the whole family regarded as an unit.
पूरी फैमिली को ही एक यूनिट मान लिया जाता है, और उस फैमिली में अगर किसी का परफॉर्मेंस अच्छा है तो उस एनिमल को सेलेक्ट कर लेंगे, और अगर परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है तो रिजेक्ट कर देंगे। ओके, तो पूरी फैमिली को एज ए यूनिट मान लिया जाता है। बट देयर आर सम लिमिटेशंस अंडर दिस फैमिली सिलेक्शन। क्या क्या लिमिटेशन है? काइंड ऑफ फैमिली। व्हाट डज इट मीन? टू टाइप ऑफ काइंड, फुल सिप एंड हाफ सिप, जो कि मैंने आपको पहले बात किया है कि फुल सिप मीन्स रियल ब्रदर एंड सिस्टर कंडीशन, एंड हाफ सिप जो आपका कोई एक पेरेंट कॉमन होगा। ओके, एंड सेकेंड इज साइज ऑफ फैमिली, and this method is best if the size of family is very large. Size of family means the number of individual in that family. ओके, सब वो फैमिली का साइज छोटा नहीं होना चाहिए, उस फैमिली में बहुत सारे मेंबर्स होने चाहिए। तो उस फैमिली के परफॉर्मेंस में किसी का भी परफॉर्मेंस देख के आप उस इंडिविजुअल को सेलेक्ट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट वन इज सिप सिलेक्शन। सेम मैंने अभी बात की थी, ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ सिबलिंग्स वी कैन सेलेक्ट और रिजेक्ट अवर एनिमल। Next one is progeny testing. Progeny testing is also very important because progeny testing is helpful for selection of animal, those animal which that we have to use for breeding purpose. अगर कोई एनिमल हमको ब्रीडिंग पर्पस के लिए यूज करना है तो उसके सिलेक्शन के लिए प्रोजेनी टेस्टिंग इज बेस्ट। ओके, और प्रोजेनी टेस्टिंग में होता क्या है? अंडर दिस टेस्टिंग बेसिस evolution of an animal on the basis of performance of its offspring. It means किसी इंडिविजुअल को अगर आपको सेलेक्ट करना है तो उसकी इम्प्रूवमेंट को देखने के लिए कि वो अच्छा है, सुपीरियर क्वालिटी का है या इंफीरियर क्वालिटी का है, उसके लिए आपको उसकी नेक्स्ट जनरेशन, उसकी प्रोजेनी की परफॉर्मेंस को चेक करना पड़ेगा। प्रैक्टिकली दिस इज वेरी टफ बेसिस, स्पेशली इन लार्ज एनिमल। जो हमारे लार्ज एनिमल हैं उनमें ये बेसिस डिसाइड करना थोड़ा टफ होता है। रीज़न क्या है? बिकॉज जो हमारे लार्ज एनिमल हैं उनका जनरेशन इंटरवल इज़ वेरी हाई, बहुत ज़्यादा होता है, बिकॉज उनका जेस्टेशन पीरियड ही इतना ज़्यादा दिनों का है, प्लस आफ्टर जेस्टेशन पीरियड जब नेक्स्ट जनरेशन आएगी, व्हेन उसके बाद में क्या होगा, वो कब मैच्योर होगा, कब वो नेक्स्ट जनरेशन देगा, देन यू कैन इवेल्युएट द परफॉर्मेंस। ओके, सो इट टेक्स टू मच टाइम. So that is why it's very difficult, especially in large animal, just because of length of generation interval is very large. Okay, so these are the different bases. On these bases we can सेलेक्ट और रिजेक्ट अवर एनिमल. फर्स्ट वन इज इंडिविजुअल परफॉर्मेंस को देखना है. पेडिग्री में सिंपली आपको क्या करना है, एंसेस्टर्स का हिस्ट्री देखना है विद प्रॉपर रिकॉर्ड्स. नेक्स्ट फैमिली सिलेक्शन में फैमिली को एक यूनिट मान लेते हैं, फैमिली की परफॉर्मेंस पे इंडिविजुअल को सेलेक्ट और रिजेक्ट करेंगे. सिबलिंग की परफॉर्मेंस पे नेक्स्ट प्रोजनी यानी कि इंडिविजुअल को सेलेक्ट करेंगे उसकी नेक्स्ट जनरेशन की परफॉर्मेंस बेसिस पे. ओके, सो दीज आर द बेसिस ऑफ सिलेक्शन. सो आफ्टर बेसिस ऑफ सिलेक्शन वी हैव टू डिस्कस द मेथड ऑफ सिलेक्शन, जो कि मैंने अभी पहले बात की थी. तो मेथड, बेसिस डिसाइड करने के बाद में हमको बात करनी है मेथड्स की. ओके, सो जनरली 3 टाइप ऑफ मेथड्स फॉर सिलेक्शन यूज्ड इन एनिमल सिलेक्शन. ओके, फर्स्ट वन इज टेंडम मेथड. टेंडम मेथड इज वेरी इंपॉर्टेंट मेथड. वन थिंग ऑलवेज कीप इन माइंड, अंडर टेंडम मेथड वन कैरेक्टर एट अ टाइम इज कंसीडर्ड. एक टाइम में सिर्फ एक ही कैरेक्टर का सिलेक्शन होगा और उसके इंप्रूवमेंट पे काम होगा. ओके, and after achieving that character, that trait up to desired level, हमको क्या करना है, दूसरे कैरेक्टर पे काम करना स्टार्ट करना पड़ेगा. नेक्स्ट दूसरा कैरेक्टर भी जब आपने अचीव कर लिया अप टू डिजायर्ड लेवल, देन वी हैव टू मूव फॉरवर्ड ऑन थर्ड कैरेक्टर. सो वन बाय वन इसमें आपको ट्रेट सेलेक्ट करना है और उसके इंप्रूवमेंट पे काम करना है. बस यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है अंडर टेंडम मेथड. एट अ टाइम वन ट्रेट you have to consider. Okay, and next जो important चीज़ है under tandem method, the efficiency of this method lies between the genetic correlation. What does it mean? कोई भी 2 ट्रेट हैं जिनके बीच में कोरिलेशन कैसा हो सकता है, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव. जैसे कि मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है कि मिल्क यील्ड एंड फैट परसेंट, ये 2 ट्रेट हैं, 2 कैरेक्टर हैं जिनके ऊपर हमको सिलेक्शन पे काम करना है. बट दीज बोथ ट्रेट्स आर नेगेटिवली कोरिलेटेड. व्हाट डज इट मीन? अगर मिल्क यील्ड हमारी इंक्रीज होगी, आप यहाँ पे देख सकते हैं मिल्क यील्ड अगर इंक्रीज होगी तो फैट परसेंट आपका धीरे धीरे कम हो जाएगा. ये एग्जांपल आपको देखने को मिलता है हमारे एक्जोटिक एनिमल्स में. एक्जोटिक एनिमल्स का मिल्क प्रोडक्शन तो बहुत ज़्यादा होता है बट फैट परसेंट बहुत कम होता है.
सेम हमारे जो इंडिजिनस एनिमल्स हैं, इंडिजिनस एनिमल्स को उनका मिल्क यील्ड तो कम होता है बट फैट परसेंट ज़्यादा होता है। तो ये कैरेक्टर क्या है आपका, नेगेटिवली कोरिलेटेड कैरेक्टर है। तो नेगेटिवली कोरिलेटेड एनिमल्स में यहाँ पे लिमिटेशंस आ जाती हैं अंडर टैंडम मेथड। कैसे लिमिटेशंस आती हैं, सपोज आप काम कर रहे हैं मिल्क यील्ड को इम्प्रूव करने के लिए। अब जैसे जैसे मिल्क यील्ड इम्प्रूव हो रही है आपकी, आप देखेंगे फैट परसेंट धीरे धीरे डिक्रीज होता जाएगा। ओके, सपोज आपने मिल्क यील्ड अचीव कर ली है डिजायर्ड लेवल तक, उसके बाद में आप काम कर रहे हैं नेक्स्ट कैरेक्टर दैट इज द फैट परसेंट एंड यू वांट टू इम्प्रूव द फैट कंटेंट। अब जैसे जैसे फैट कंटेंट अगर आप बढ़ेगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे फैट कंटेंट अगर यहाँ पे बढ़ेगा आपका, तो आपका फिर जो फर्स्ट कैरेक्टर आपने अचीव कर लिया वो धीरे धीरे फिर डिक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पे लिमिटेशंस हैं अंडर नेगेटिवली कोरिलेटेड ट्रेट्स हैं। ओके, तो चीज़ जो आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ जो समझनी इसमें वो क्या है, यहाँ पे लिमिटेशंस हैं अंडर नेगेटिव कोरिलेटेड ट्रेट्स एंड वन मोर थिंग, एट अ टाइम वन कैरेक्टर यू हैव टू कंसीडर। नेक्स्ट इज इंडिपेंडेंट कलिंग लेवल। व्हाट डज इट मीन? ये मेथड कैसे काम करता है, जस्ट अपोजिट टू टैंडम मेथड। टैंडम मेथड में एक कैरेक्टर एक टाइम पे लेना है, बट इंडिपेंडेंट कलिंग मेथड में 2 और मोर ट्रेट्स आर कंसीडर एट अ टाइम। 2 या 2 से ज़्यादा कैरेक्टर को एक टाइम पे हम सेलेक्ट करते हैं और उनको इम्प्रूव करने के लिए काम करते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया है, सपोज हमने 3 कैरेक्टर अपने स्टैब्लिश किए हैं। फर्स्ट वन, एज एट फर्स्ट कार्विंग शुड बी लेस देन 36 मंथ। ओके, सेकेंड कैरेक्टर, बॉडी वेट एट फर्स्ट कार्विंग above than 350 किलोग्राम एंड अवर थर्ड कैरेक्टर जो है हमारा, डेली मिल्क यील्ड इट शुड बी मोर देन 15 लीटर पर डे। ओके, अब हम इन पे काम कर रहे हैं। सपोज वी हैव एन एनिमल हुज एज एट फर्स्ट कार्विंग 37 मंथ, ओके, एंड सेकेंड बॉडी वेट 375 किलोग्राम एंड डेली मिल्क यील्ड 20 लीटर पर डे। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि जो हमारा सेकेंड ट्रेड था कि हमारा जो फर्स्ट कार्विंग तो बॉडी वेट कितना होना चाहिए, अबव देन 350 किलोग्राम। हमारा बॉडी वेट कितना आया, 375 किलोग्राम। थर्ड कैरेक्टर हमारा क्या था, द मिल्क यील्ड शुड बी अबव 15 लीटर। यू कैन सी हियर डेली मिल्क यील्ड कितना है, 20 लीटर पर डे। तो जो हमारा जो डिजायर्ड लेवल था उससे ज़्यादा है ये दोनों कैरेक्टर, बट द फर्स्ट कैरेक्टर एज एट फर्स्ट कार्विंग शुड बी लेस देन 36 मंथ, बट द एज एट फर्स्ट कार्विंग कितना है, 37 मंथ एट फर्स्ट कार्विंग। तो इसमें क्या करेंगे, वी नीड टू डिस्कार्ड दिस एनिमल बिकॉज अमंग दीज 3 traits one character is not up to our desired level. Okay, and these two improved trait cannot compensate first one. ओके, ये 2 ट्रेट हमारे अच्छे आ गए बट स्टिल हम एनिमल को डिस्कार्ड कर देंगे बिकॉज हमारा जो फर्स्ट ट्रेट है वो हमारा अप टू द स्टैंडर्ड नहीं आया। सो दिस थिंग इज नोन एज इंडिपेंडेंट कलिंग लेवल। क्लियर, 2 चीजें क्लियर कर लेना इसमें कि 2 और मोर ट्रेट आर कंसीडर एट अ टाइम एंड एनी वन ट्रेट which is not up to the desired level cannot compensate to other trait. Okay, अगर कोई भी एक ट्रेड आपके अकॉर्डिंगली नहीं आया है तो बाकी ट्रेड कितने भी अच्छे आए हैं वो 2 ट्रेड जो बाकी ट्रेड जो अच्छे आए हैं वो आपके कंपनसेट नहीं कर सकते। ओके, नेक्स्ट वन इज टोटल स्कोर और सिलेक्शन इंडेक्स। इसको हम टोटल स्कोर कार्ड मेथड भी बोलते हैं। इट इज डेवलप्ड बाय स्मिथ एंड हेजल and each trait is given a weightage depending on its economic worth, heritability and interrelationship with other trait. What does it mean? इसमें क्या करते हैं, हम स्कोर कार्ड बनाते हैं और हर एक ट्रेड पे हम एनिमल्स को मार्क्स देते हैं और लास्ट में क्या करते हैं, उन मार्क्स को टोटल कर लेते हैं और ऑन द बेसिस ऑफ दीज मार्क्स हम एनिमल को सिलेक्ट कर लेते हैं या उसको डिस्कार्ड कर देते हैं अगर उसका मार्क्स जस्ट लाइक योर रिपोर्ट कार्ड। ओके, दिस मेथड वर्क्स लाइक अ रिपोर्ट कार्ड. Okay, generally nowadays this total score method is widely used rather than these 2 methods. Okay, so these are the basic methods of selection. Okay, thank you.